Hello everybody, myself Professor Suresh Hasbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's lecture. Name of the topic is Resolving Power and Rayleigh's Criterion from 12th standard. Main topic is wave optics. First we'll discuss about the resolving power. Look at the definition for it. The ability to distinguish two physically separated objects as two distinct objects is known as the resolving power of an optical instrument. ओके तो इसमें यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को बताया एक कौन कौन हो सकता है दैट आई कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एटसेट्रा these are the optical instruments are there now the resolving power depends upon which things it depends upon the aperture means usually the diameter of the lens or mirror and wavelength of the light used जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ एंड साइज ऑफ द लेंस और मिरर on these two factors that is a resolving power depends means simply you have to remember about one thing is that resolving power means the ability to separate the two objects. Got it? Now related to resolving power we have to discuss about the one term limit of a resolution. Look at the definition. The minimum visual angle between two objects that can be resolved by that instrument is called limit of a resolution. Okay, minimum visual angle. Sometimes you can able to remember this limit of resolution as that is a minimum linear or angular separation between the two objects so that their images are just resolved that is called as a limit of resolution. ये भी हम लोगों को याद रखना है ठीक है तो लीनियर सेपरेशन माइक्रोस्कोप के लिए आता है और एंगुलर सेपरेशन हम लोगों को टेलीस्कोप के लिए आता है. Now these are the two terms resolving power and limit of resolution. What will be the relation between them that we have to discuss there. तो इन दोनों में relation क्या है देखो the reciprocal of the limit of resolution is called resolving power means resolving power and limit of resolution are reciprocals of each other. ये आप लोगों को टर्म याद रखना है ठीक है. Now another term that we are going to discuss there that is intensity distribution in a diffraction pattern. जो जानबूझ के मैंने यहाँ पे एक पार्ट ले लिया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था front upward diffraction due to the single slit. In that topic we have discussed about this term. लेकिन फिर से एक बार देखो that is intensity distribution. Y axis पे हम लोगों ने intensity लिया है and on X axis we have taken that is a distance. तो यहाँ पे यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल मैक्सिमा. ओके ये है सेंट्रल मैक्सिमा. दी स्मॉलर पिक्स आर देयर दे आर नोन एज अ सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमम. गॉट इट. यहाँ पे जो डेप्थ पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा और ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा यहाँ पे डेप्थ पार्ट जो है इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा जहाँ पे इंटेंसिटी कम है. गॉट इट. दीज आर द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर. सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा इसमें से ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन. हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं. वैसे यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा के लिए ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है ये सेकंड सेकेंडरी मिनिमा और ये थर्ड सेकेंडरी मिनिमा. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. मींस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में इस साइड में सेकेंडरी मिनिमा है इस साइड पे भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है. दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच में हम लोगों को सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है. गॉट इट. दैट टर्म दैट फैक्टर यू हैव टू रिमेंबर देयर. साथ में हम लोगों को याद क्या रखना है यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है देखो इंटेंसिटी ऑफ ऑल फ्रिंजेस in diffraction is not same.
It is a maximum for central maxima and decreasing for secondary maxima. Similar about the secondary minima also. Secondary minima के लिए और secondary maxima के लिए भी intensity goes on decreasing. यहाँ से intensity इस साइड में डिक्रीज होते जाएगा, यहाँ से इस साइड में intensity डिक्रीज होते जाएगा. Got it? ये टर्म आप लोगों को अच्छे से याद रखना है जो रिवीजन के फैक्टर में, रिवीजन के टर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिया है. ओके, तो ये आगे का जो पार्ट है रेलिस क्राइटेरियन में हम लोगों को ये यूज करना है. ओके, तो याद रखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, इधर भी और इधर भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. ये दोनों टर्म्स अच्छे से याद रखो. ठीक है, we are going to discuss about the Rayleigh's criterion for limit of resolution or for resolving power. तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द रेलिस क्राइटेरियन आप लोगों को एक याद रखना है, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो आप लोगों को डायफ्रैक्शन पैटर्न जो बताया था या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया था, दैट इज ड्यू टू अ सिंगल सोर्स. एक सोर्स की वजह से, दैट मे बी पॉइंट सोर्स और दैट मे बी लीनियर सोर्स देयर, एक सोर्स की वजह से वैसे हम लोगों को डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. ओके, इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दिस टू डायफ्रैक्शन पैटर्न्स ओवरलैप्स विद ईच अदर. At that time we cannot able to identify that the two objects are separate or overlapping. तो उसके लिए एक रूल हम लोग बोल सकते हैं, एक रूल या एक क्राइटेरिया डिसाइड किया रेलिग्स ने, एंड दैट rule, that is criterion, is known as a Rayleigh's criterion there, and that is for a limit of resolution. Means कब दो ऑब्जेक्ट्स, दो सोर्सेस सेपरेट है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन या क्या क्राइटेरिया बताया, देखो. फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन two objects are said to be just resolved when first minimum, that is first minimum इसका मतलब क्या है, first secondary minimum of the diffraction pattern of one source coincides with the central maximum of the diffraction pattern of the other source. Got it? एक डायफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दूसरे डायफ्रैक्शन पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर कोइंसिडेंट होता है. ओके, कोइंसाइड्स होता है, तब हम लोग इसको रेलिस क्राइटेरियन ऐसे बोल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा देयर. गॉट इट? तो in such a case depression in the resultant envelope is noticeable as shown in the figure B. तो अभी फिगर B क्या है वो देख लो. तो यहाँ पे ये फिगर B है. नोटिसेबल मतलब यहाँ पे हम लोगों को दो अलग अलग सोर्सेस जैसे दिख रहे, लेकिन सेपरेट है क्या नहीं है. ओके, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को ये रेलिस क्राइटेरियन यूज किया. तो फिगर बी दैट इज फॉर द जस्ट रिजॉल्व. तो यहाँ पे आप लोगों को सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है. गॉट इट? तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा एक डायफ्रैक्शन पैटर्न का, जो दूसरा डायफ्रैक्शन पैटर्न है इसका ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ओवरलैप हुआ. तो ये दोनों ओवरलैपिंग है, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. वैसे ही ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे किसके साथ ओवरलैप हुआ है, इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के साथ. ओके, यदि ऐसे हुआ है तब उसको हम लोग बोलते हैं रेलिस क्राइटेरियन. एट दैट टाइम द सोर्सेस आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व. ये हम लोगों को याद रखना है. ठीक है, तो साथ में इसके साथ फिगर बी के साथ आप लोगों को और दो फिगर्स दिखाई है, दैट इज ए एंड सी. यहाँ पे क्या हुआ है देखो, फिगर ए के लिए यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कैसे दो सेपरेट हम लोगों को हो रहे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे वैसे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता है. इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इन फिगर ए द डिप्रेशन इज नॉट नोटिसेबल, दैट इज द टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व या नॉट रिजॉल्व आप लोग बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी सेपरेट नहीं है, तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर कोइंसाइड्स ऑन वन अनदर देयर. ठीक है, ओवरलैपिंग आप लोग बोल सकते हो. यहाँ पे अनरिजॉल्व किसके लिए, फिगर ए के लिए. गॉट इट? नाउ व्हाट इज अबाउट द फिगर सी. यहाँ पे हम लोगों को दो अलग अलग बाय विद द हेल्प ऑफ आईज आल्सो वी कैन एबल टू फाइंड आउट दैट दे आर सेपरेट. तो इन फिगर सी the depression is clearly noticeable, that is two objects are well resolved. Got it? तो ये तीन कंडीशंस है डिपेंडिंग अपॉन दैट इज 3 डायग्राम्स. 1,
2 and C, या फिगर A, B and C there, that you have to remember there. इसमें से फिगर B जो है that is only the Rayleigh's criterion. ओके, ये है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन देयर, और इसी को हम लोग रेलिस क्राइटेरियन या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है ये हम लोग इसको बोल सकते हैं, दैट इज जस्ट रिजॉल्व. याद रखना है, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए. गॉट इट? नाउ यदि दो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को लीनियर ऑब्जेक्ट्स है, देन व्हाट हैपेंस, दैट वी हैव टू कंसीडर देयर. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेलिस क्राइटेरियन टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे यूज करना है. ओके, नाउ कंसीडर टू सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट, दैट इज स्लिट्स, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एज पर रेलिस क्राइटेरियन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. यहाँ पे फिर से वो लिखा है, द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन ऑफ द सोर्स. फर्स्ट मिनिमम इसका मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, वो याद रखना है, शुड कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द अदर, दैट इज एट द जस्ट रिजॉल्व कंडीशन. ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा of the two objects is equal to the distance between central maxima and first minimum of the diffraction pattern as shown in the figure B. तो फिगर B में हम लोगों ने जो दिखाया था वो फिर से एक बार फिगर B देखो. तो यहाँ पे थोड़ा मैंने जूम किया है, तो क्या देखो, तो ये दो सेंट्रल मैक्सिमा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये जो वन डायफ्रैक्शन पैटर्न ले लिया तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा और इसी का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये यदि डिस्टेंस इक्वल है, ओके, तो इसको हम लोगों ने बोला है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन, जो ऊपर लिखा है. सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए. गॉट इट? तब उसको हम लोग बोल सकते हैं टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व. गॉट इट? तो पे हम लोगों को क्या टर्म आता है या क्या फॉर्मूला आता है वो डायरेक्टली रेलिस क्राइटेरियन ने यहां पे दिया है. देयरफॉर एंगुलर सेपरेशन, दैट इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इज, तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का कितना एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर सेपरेशन है, ये यहां पे दिया है. डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए. ये हम लोगों को याद रखना है, लैम्डा अपॉन ए, that is the conditions are there. As this first secondary minimum coincides with the central maximum of the other, this must be the minimum angular separation between the two objects and hence it is known as a limit of a resolution of that instrument. इसीलिए ये जो डी थीटा का वैल्यू मिला इसको हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से बोल सकते हैं. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, देयरफॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए. गॉट इट? दैट इज इक्वेशन 1. दैट टर्म यू हैव टू रिमेंबर देयर. तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन the two linear objects that are just resolved at a distance capital D from the instrument is. अब यहाँ पे हम लोगों ने और एक कंडीशन दिया है कि यदि ये लीनियर ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट से मतलब माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, तब y is equal to कैपिटल D into d थीटा. ये एंगल जो है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एज इट इज, इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, कितने डिस्टेंस पे रखा है हम लोगों ने उससे मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट इज ट्रीटेड एज लाइक अ मिनिमम सेपरेशन देयर. ठीक है, तो d कैपिटल D इंटू डी थीटा. तो डी थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, वी आर गेटिंग लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए, एंड इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर. सेंटर मतलब सेंट्रल मैक्सिमा या सेंटर ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न. ये आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, इक्वेशन 2, सेंटर ऑफ मैक्सिमा, ये किसके लिए, दैट इज फॉर द लीनियर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स है तो हम लोगों को नेक्स्ट टर्म आएगा. क्या है देखो, अभी सेकंड पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो प्रीवियस वन स्लिट्स के लिए था, अब यहां पे देखो क्या है, कंडीशन दिया है, सोर्स ये सर्कुलर अपर्चर में से पास किया तो हम लोगों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा. ठीक है,
तो ये जो लाइट है सर्कुलर अपर्चर में से पास हुआ तो हम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे इस टाइप का पैटर्न दिखता है, इसको हम लोगों ने बोला दैट इज अ आइरिस डिस्क या आइरिस रिंग्स. ओके, व्हाइल ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स थ्रू माइक्रोस्कोप appears to be point objects. The diffraction of such objects consist of central bright disk surrounded by concentric rings called iris disk and iris ring as shown in the figure. तो समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम कंसीडर किया. सर्कुलर अपार्टमेंट जो सेंट्रल पी पॉइंट दिखाया दैट इज नथिंग बट द आइरिस डिस्क जो ब्राइट है. ओके, और जो ब्लैक कलर का इंडिकेट किया है ये सर्कुलर rings है. okay, these are nothing but the iris rings. okay, this is the first observed by the scientist Airy, and that's why in the honor of this one we have considered that the iris disk and iris ring, and this is the actual diagram, that is the real iris disk obtained by using a laser beam. laser beam से iris disk हम लोगों को कैसे मिलती है, iris rings कैसे मिलती है, ये यहाँ पे आप लोगों को रियल डायग्राम इंडिकेट किया है या रियल डायग्राम शो किया है. Got it? तो सेंट्रल पोजीशन पे डिस्क है, ब्राइट डिस्क, एंड इट इज सराउंडेड बाय द डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर देयर, दैट इज आइरिस रिंग्स. Got it? तो उस वक्त ये एक सोर्स का है, यदि दो सोर्स आते तो यहाँ पे रेलिस क्राइटेरियन कैसे यूज करना है ये नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है. क्या देखो, अकॉर्डिंग टू रेलिक्स सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व इफ the first dark ring of a diffraction pattern of the first object should be formed at the center of diffraction pattern of the second object and vice versa. एक का फर्स्ट डार्क रिंग जो है, ओके, ये पी के बाद जो डार्क रिंग है ये फर्स्ट डार्क रिंग, ये दूसरे की कहां पे होना चाहिए, दैट इज द सेंटर ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न. मींस एक का सेंटर द डिस्क कोइंसाइड विद द फर्स्ट डार्क रिंग ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा देयर. यदि ये ऐसे होता है एट दैट टाइम दे आर कंसिडर्ड टू बी जस्ट रिजॉल्व, एंड देयरफॉर अब यदि ऐसे होता है तो एक का डिस्क दूसरे के रिंग पे ओवरलैप हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट एवर द disk is there, whatever the radius of the disk, that is considered as a limit of resolution. Therefore minimum separation between the images is radius of the first dark ring. Okay, that term that you have to remember there, whatever the radius of the first dark ring, that is nothing but the linear separation there. Got it? Thank you.